Hello students, we will start with our next topic of chapter first history, that is romantic imagination and national feeling. The word which you distinguish, that is romantic imagination. It is a very different term in the context our chapter is going through. Okay, what romantic term is doing in this chapter? Actually, in the European continent, whatsoever was happening in the countries, it was not only the forces or the men who are occupying the countries, who are occupying the territories and working for the nationalism. There is one section of the people, or we can say our society, who was very much affected by the old things, or we can say of our culture. बहुत सारे लोग, जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमांटिक इमेजिनेशन में क्या था, बहुत सारे लोगों ने इस पर जोर दिया कि सिर्फ लड़ करके ही नहीं, कि लड़ना है और टेरिटरी जीतनी है, राज्य जीतने हैं, तभी हम एक होंगे और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद आएगा. नहीं, राष्ट्रवाद को लाने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है, एंड दैट इज आवर कल्चर, रोल ऑफ कल्चर. इन द फर्स्ट we are having 3 points under it. The first point I will explain to you. The first point is critical approach towards reason and science. This approach, what the romantic nationalist persons had said, that they had criticized it. Okay, they had criticized this reason and science, that always it is not necessary that we will go with every time for a logic, है ना. हर चीज के पीछे लॉजिक नहीं होता. How can you prove that there is God? If you cannot prove, it means there is no God. Okay, तो इसका मीन्स यही हुआ कि every time we cannot give a logic, there are something which are above this logic and science, and that is the 3 things are there. They had said to focus on what they had said to focus on: emotions, mystical feelings, and intuitions. Instead of focusing on reason and science, they said we have to focus on emotions, mystical feelings, and intuitions. Emotions, you all know that if we are attached with the emotions, then the things automatically become very smooth and a very good bond is established between the people. If emotion of nationalism arises, then nobody can destroy it. No metal, no sword, no gunpowder, nothing can destroy it, because emotions are something very higher category in above all those tactics. And then mystical feelings, what we are feeling. Mystical means ऐसी चीजें जो हमें बोले जाए, जैसे हम बोल देते हैं कि वो एक ऐसा पर्सन था, उसको ये चीजें असर नहीं करती थी, है ना. हमने उसको देखा नहीं, लेकिन हम ऐसा बोलते थे. जैसे ऐसा बोला जाता है दैट गांधी जी हैज अ वेरी गुड, कि ही hypnotized everybody. A person who sits in front of him and can talk for some minutes, he will be hypnotized and he will say whatever Gandhi ji will want to say. तो ऐसी बातें हमने सुनी, मतलब मिस्टिकल फीलिंग्स. हम कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें करते हैं, लोगों के बारे में सुनते हैं कि वो ऐसा था, उसको बुलेट असर नहीं करती हैं, ये सारी चीजें, दैट इज मिस्टिकल फीलिंग. एंड द इंट्यूशंस, हमको जो अंदर से एक नहीं सिक्स सेंस बोलता है. सिक्स सेंस मेरा आज ये कह रहा है कि आज कुछ होगा, अच्छा होगा, कुछ खराब होगा, आज ये हो सकता है, आज ये हो सकता है, फोरकास्ट टाइप का एक इंट्यूशन अंदर से आना. तो उन्होंने, जो रोमांटिक नेशनलिस्ट पर्सन थे, उन्होंने इन 3 चीजों को सपोर्ट किया और इसको क्रिटिसाइज किया, रीजन और साइंस को. अंडरस्टूड. सेकेंड, वी आर गोइंग थ्रू फोक कल्चर एज द स्पिरिट ऑफ द नेशन. फोक कल्चर मीन्स, फोक मीन्स जो हमारा कल्चर होता है, विच इज मीन्स बेसिक.
जो हमारी कंट्री के लोगों का कल्चर है, जो ट्रेडिशनल है, जो चला आ रहा है. What type of music, what type of clothing, this is called folk. What type of literature. आप लोगों ने अपने दादा दादियों से, मतलब ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से आप लोगों ने कुछ कहानियां सुनी होंगी, कुछ किस्से सुने होंगे, कुछ बातें सुनी होंगी, कुछ ट्रेडिशंस आप देखते होंगे कि जब आपकी मदर कोई पूजा करती हैं किसी की भी, तो वो देखिए ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे करो. आपको कुछ कहानियां भी सुनाते हैं कि वो उस टाइम पर ऐसा होता था, ऐसा होता था, उसका ये होता था, वो होता था, ठीक है, उसका ये फल होगा, उसका ये कॉज होगा. तो ये कई सारी चीजें होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फोक कल्चर एज द स्पिरिट ऑफ द नेशन. कि इफ वी आर फोकसिंग ऑन द फोक कल्चर, इट मीन्स वी आर वेरी नियर टू आवर नेशन. ओके, तो फोक कल्चर, you can say that folk culture is directly proportional to the nationalism. If we are promoting folk culture, means we are promoting nationalism. Understood? Next and the last point of this is that emphasis on vernacular languages. Vernacular languages means, vernacular means local, regional languages that are local languages. Okay, vernacular languages. Why they focus on the vernacular languages? Because to speak in a language which is not easy to understand by all, it will create a hurdle for unity. बात समझे? मतलब कि अगर एक ऐसी लैंग्वेज हम बोले जो सबको समझ में नहीं आ रही, एक सोसाइटी के बहुत ही कम लोगों को समझ में आ रही, इट मीन्स क्या होगा, जब सब तुमसे समझ में नहीं आएगी तो तुमसे कोई सब जुड़ेंगे भी नहीं. इफ दे ऑल आर नॉट अटैच्ड, तो आपकी मूवमेंट, मोशन, रिवोल्ट, व्हाटएवर, इट इज फेल्ड. तो यहां पर किसकी बात की गई कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जो हैं, दे शुड बी प्रमोटेड. द पीपल फील्स वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी अटैच्ड when they are having talked or given lectures or given speeches in their language. जैसे आपका है ना कि जैसे English is still a little bit a different language in comparison to the Hindi or the regional languages. कोई English में बोल रहा है, you feel कि that's you have to go through the lectures and all the classes. It is because compulsory. That's why you are focusing. लेकिन जो एक बोला जाता है ना, जिसमें मजा आता है, वो किस लैंग्वेज में आता है? अपनी लैंग्वेज में आता है. तो सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नाउ वी आर हैविंग सम एग्जांपल्स आल्सो, एंड दीज एग्जांपल्स यू हैव टू केयरफुली नोट डाउन. German philosopher Johann Gottfried Herder, he had said Das Volk, or he had talked about the common people, because he had said that it is the common people who can create and who can build up the nationalist feeling, because it is the common people who is doing all sorts of things. He is very near to all the folk culture instead of the developed person. Okay, so he on the folk culture, he focused on the folk culture. He talked about the music, he talked about the poetry, he talked about the literature. कि हमारे जो देखिए, what is our local literature, local music, local poetry, ये सब हमको, जैसे हम लोग देखिए इंडियंस हैं, तो इंडियंस क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में. ठीक है, तो ये क्या है, एक वो चीज आती है कि हम अंदर से मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह ये पोएट्री गाते हैं. लोगों ने उसको कई सालों तक गाया और उससे उनको एक क्या हुआ, एक फीलिंग आई नेशनलिज्म की, और वो लड़ते रहे. वजह, दे आर अटैच्ड टू दीज पोएट्रीज बिकॉज दीज पोएट्रीज आर संग बाय देयर पीपल. वो उनका कल्चर था. ठीक, सिमिलरली ये जो फिलोसोफर थे आपके जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, ही आल्सो फोकस्ड ऑन दिस लोकल फोक कल्चर. देन वी टॉक अबाउट द कैरोल कर्पुन्स्की. इनका नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बिकॉज बाय हिज ओपराज एंड म्यूजिक, ओपरा इज वन ऑफ द फेमस डांसेस शोज इन यूरोपियन कंट्रीज. बाय हिज ओपराज एंड म्यूजिक ही लेड द नेशनलिस्ट अप्रोच और मूवमेंट. उन्होंने अपनी नेशनलिस्ट अप्रोच या मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ाया, अपने ओपेराजोस
म्यूजिक से। वहां पर उन्होंने अपने कंट्री के लोगों को कैसे यूनाइट करे, कैसे हमारे लोग हैं, कैसे हम सब एक साथ रहें, ये अपने थीम को इसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया। एंड इट द पर्सन वाज कैरोल कर्पुन्स्की। लास्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आप याद रखिएगा, ये इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिश लैंग्वेज, सिंबल ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। एक्चुअली सम पार्ट ऑफ द Polish or the person of Poland, it has been captured by the Russia. Okay, so it had been captured by the Russia. So Russia, when a country is capturing some other country, it means they will implement their culture. होता है, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो they want to implement their culture. मुगल्स आए, मुस्लिम्स आए तो they want to implement their culture. So similarly, when the Polish was controlled by the Russians, they want to suppress the other culture and they want to implement their culture. तो वहां पर क्या हुआ, जो यहाँ पर क्लर्जी क्लास था, यानी कि आपने पढ़ा होगा जब फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा उसमें फर्स्ट स्टेट आपने पढ़ी थी, तो फर्स्ट स्टेट जो क्लर्जी थे, क्लर्जी चर्च, तो वो चर्च में जो क्लर्जी पर्सन थे, चर्च क्लर्जी प्रीस्ट, इन सब ने क्या किया, लैंग्वेज को, कौन सी लैंग्वेज, पॉलिश लैंग्वेज को अपना एक टूल बनाया, मेक इट्स वेपन to protest against the Russians. They make it a weapon to protest against the Russians. Understood? Russians के against में उन्होंने इसको weapon बनाया. They fought for that and they made whatever the speech, where to preach, in the churches or in the public meetings, gatherings, wherever they give their each and every speech in the Polish language, and they ask the people that to come and join with our language. As we are joined with our language, as we are attracted to our culture, the more we are attracted to our culture, the more we will become strong. और उसी से क्या होगा, we will get independence one day. Russians will give us the right that we will work in our language. We can follow our culture. Okay, so this is your topic. One important in that box, okay, source, one name is given, Grimm brothers. They also worked for the folk tales and nation building. They belongs to the Germany, and they mainly focused on the folk tales, जो कहानियां होती हैं, पुराने टाइम की कहानियां, अपने लोगों की कहानियां, सारी चीजें उनको इन्होंने कलेक्ट किया और बाद में प्रिंट किया, and they print like that the peoples feel very attached to them, because उनसे क्या लगा, लोगों को अपना एक देश की ऐसी फीलिंग आई कि नहीं, इन्होंने हमारे लिए ये किया, हमें भी ये करना है, अगर इन्होंने ये सैक्रिफाइस किया, we can also do this sacrifice for our country. So this is for romantic imagination and nationalist feeling. तो आपको एक चीज याद रखनी है कि they protest against the reason and science, जिसके लिए इतने सारे सोशल थिंकर्स ने मतलब रेवोल्यूशंस किए और इतना ज्यादा पैनिक लिया, उसके अगेंस्ट में रोमांटिक, देखिए ये उसके अगेंस्ट में नहीं थे कि इसको खत्म कर दो, ये बात नहीं थी, वो बस ये कहना चाहते थे एवरी टाइम वी शुड नॉट फोकस, हर समय ये सही नहीं है, ठीक है। और उनका ये मानना था कि जब रेवोल्यूशन की बात आ रही है, देशभक्ति की बात आ रही है, राष्ट्र प्रेम की बात आ रही है, वो जो एक फीलिंग बननी है, वो फीलिंग इसके कंपैरिजन में इन चीजों से ज्यादा बन सकती है। ये जो तीन चीजें, इमोशंस, मिस्टिकल फीलिंग, इंट्यूशंस, इनसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लैंग्वेज से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, म्यूजिक पोएट्री से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फोक टेल से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फोक कल्चर से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो दैट इज फॉर नाउ।